जानवी तिवारी, unmute बेटा. Yes, ma'am. Beta, leukocytes can be differentiated into two types, two main types. Name those types. Granulocytes and agranulocytes. Very good. Can you give me the types of granulocytes? Name the types of granulocytes. Eosinophil, basophil, and neutrophil. Very nice. Yes. Yes, ma'am. During the time of allergy, which granulocyte will increase in the blood? Yes. Yes, ma'am. During the time of Allergy, which allergy. granulocyte will increase in the blood? Jay Pawar. Jay Pawar, do you know the answer? Yes, ma'am. एलर्जी के टाइम पे कौन सा ग्रैन्युलोसाइट का नंबर ऊपर रहेगा? Eosinophil. वेरी गुड. इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स का नंबर क्या होगा? ऊपर रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट? एलर्जी. ओके. कुणाल शिंदे, अनम्यूट योरसेल्फ. Kunal Shinde. Kunal Shinde, can you hear me? Yes, ma'am. Better Kunal Shinde, give me the difference between basophil and eosinophil. Any 2 points. Difference between basophil and eosinophil. The stains of basophil are basic dyes, and the stains in eosinophils are acidic dyes. And very good. Total WBCs are 0.5% to 1% in no, basophil. You cannot give the composition as difference between. You cannot give the composition as difference between. Think some any other point apart from that. The nucleus of basophil is twisted. Yes, the nucleus of basophil is twisted. And what about the nucleus of eosinophil? Is lobe shaped, ma'am. Bilobe. eosinophil का nucleus कैसा होता है? Bilobe. Okay. Bilobe. Okay, ma'am. Very good child. Mute yourself. Thank you. Miss Chaudhary, can you hear me? Miss Chaudhary, can you hear me? Unmute yourself. Rosie, can you hear me? Yes, ma'am. Beta, what is phagocytosis? What is phagocytosis? Ma'am, phagocytosis. Swallow. Swallow, we don't use वो क्या bird है swallow करने बेटा या कोई जानवर है swallow करने? Mute yourself. Yes, Pawar. Yes, ma'am. What do you mean by phagocytosis? The process in which the cells engulfs its solid particles. Very good. Name the granulocyte that occupies major part of the blood. Sorry, of leukocyte. Name the leukocyte that comprises major part. Granulocyte. बोलो बेटा. Granulocyte. नहीं. Name the granulocyte which is maximum in number. Neutrophils. Neutrophils. Okay. Now tell me the granulocyte. Who's that? क्यों इतना हैंड रेस कर रहे हो? कौन है वो? Name the granulocyte. The granulocytes are formed from dash cells. Granulocytes are formed from dash cells. Myeloid stem cell. Myeloid stem cell. Myeloid stem cells. Very good.
Put it in the chat who wants to answer, because I am not able to find out that particular child. Okay. Now the agranulocytes are formed from dash stem cells. Agranulocytes are formed from dash Lymphoid. stem cells. Lymphoid. Lymphoid stem cells. Okay. Now we will be taking a look of the agranulocytes. बच्चे लोग इसमें दो आता है, एक है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या है मोनोसाइट. एक क्या है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या है मोनोसाइट. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था लिम्फोसाइट जो है वो स्मॉलेस्ट WBC है. सबसे छोटा WBC कौन सा है लिम्फोसाइट, और उसका न्यूक्लियस बड़ा है, लार्ज एंड स्फेरिकल. लिम्फोसाइट जो है इट इज द स्मॉलेस्ट WBC विद अ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें टाइप्स है, लिम्फोसाइट में टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी. बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी. रिमेंबर दैट द एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी. क्या मैंने अभी कोई क्वेश्चन पूछा जो बीच में बैठ के तुम हैंड रेज कर रहे हो खुदे जैसा? हाँ, और तुम लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो ना? नो मैम, इसमें नहीं कर सकते मैम. वो शायद सुरभि है और नजरीन है जो हैंड रेस कर रहे हैं ना. सुरभि को तो अनम्यूट होना है, इसलिए उसने मुझे बोला. तुमको बोल के क्या फायदा है, उसको मुझे चैट में डालना चाहिए ना. मैम उसने बोला मेरे यहाँ पे ना चैट बॉक्स नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में किया है. मैम मेरा हैंड रेस नहीं है, मैंने पहले ही किया था, 20 मिनट पहले आई थी. लिम्फोसाइट जो है वो दो टाइप के, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी. ठीक है, जैसे हाँ बोल रोहन यादव, क्या बोलने का है तुझे? हाँ क्या बोलना है? तू किस खुशी में तूने अभी हैंड रेस किया था रोहन यादव? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि तुझे मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है. बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी. अभी तुम लोग ने सुना रहेगा, बहुत कॉमन हो गया है, जो कोविड वैक्सीन ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. वैक्सीन लेने के बाद बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी. एंटीबॉडी से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. द इम्यूनिटी दैट इज ऑब्टेन्ड ओके बाय द बॉडी due to the presence of antibody or due to the production of antibody is known as humoral immunity. बच्चों लोग ये बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होता है? Where are these B lymphocytes produced? They are produced in the bone marrow. B lymphocyte किधर प्रोड्यूस होता है? They are produced in the bone marrow. ये ध्यान से सुनना ये टॉपिक, क्योंकि हेल्थ एंड डिजीज में दोबारा से ये सेम टॉपिक रिपीट होता है. तब मैं सिर्फ सवाल करूंगी, समझाऊंगी नहीं. लिम्फोसाइट जो है इट्स अ टाइप ऑफ अग्रैन्युलोसाइट. व्हाट इज लिम्फोसाइट? इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट अग्रैन्युलोसाइट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट WBC. सबसे छोटा WBC है विच हैज अ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस. दो टाइप का लिम्फोसाइट है, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी. हमारे शरीर को जब इम्यूनिटी एंटीबॉडी द्वारा मिलती है, when our body okay receives immunity due to the production of antibody, such a immunity is known as humoral immunity. ऐसे immunity को हम क्या बोलते हैं? humoral immunity. अब B lymphocyte कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? Where is the site for the production of B lymphocyte? bone marrow. T lymphocyte भी bone marrow में ही प्रोड्यूस होता है बच्चे लोग. T lymphocyte is also produced in the bone marrow. लेकिन T lymphocyte मैच्योर होने के लिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों किधर पैदा हो रहे हैं? बोन मैरो में. ठीक है, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, एक माँ के दो बच्चे हैं. ठीक है, एक बच्चा माँ के साथ ही रहता है, दूसरा बच्चा माँ को छोड़ के
नौकरी के लिए कहीं और चले जाता है। तो जो बच्चा माँ के साथ है उसको हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट पैदा भी वहीं हुआ है माँ के पास, पला बड़ा भी वहीं पे और बड़ा भी वहीं पे हो गया, मैच्योर भी वहीं पे होता है बोन मैरो में, इसके लिए उसका नाम बी है, बी से बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट। लेकिन जो बच्चा ठीक है बोन मैरो के पास पैदा हुआ लेकिन वो कमाने किधर गया है, थाइमस ग्लैंड के पास। थाइमस हमारे चेस्ट में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। जो लिम्फोसाइट बोन मैरो को छोड़ के मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के पास जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट द्वारा हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उस इम्यूनिटी को क्या बोला जा रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इतना समझा क्या? अब Yes, नहीं ma'am. मुंह खोलेंगे। यस मैम। हाँ, अलग अलग टाइप है टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट का अलग अलग टाइप है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप्स होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल का दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। इज इट क्लियर टू हियर? डिड यू गाइस अंडरस्टूड? यस समझा मैम। एक बार ये यस slide मैम। read कर लो ध्यान से। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब? बेटा जब हमारे शरीर को इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट द्वारा मिलती है एंटीबॉडी के वजह से, तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमारे शरीर में 2 टाइप की इम्यूनिटी है। ये बच्चे फालतू का हाथ उठा रहे, वो टिकती आवाज है। 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। हमारे शरीर को 2 टाइप की इम्यूनिटी मिलती है, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो हमको बी लिम्फोसाइट द्वारा मिलती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो हमको बी लिम्फोसाइट द्वारा मिलती है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमको टी लिम्फोसाइट के वजह से मिल रही है उसको बोलते हैं हम सेल मीडिएटेड, ठीक है। ओके मैम। I am changing the slide now. The next type of a granulocyte is monocyte. ये सबसे बड़ा ग्रैन्युलोसाइट है और इसकी न्यूक्लियस जो है ये किडनी शेप्ड है। दिस इज द बिगेस्ट ग्रैन्युलोसाइट, ओके। और इसका न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो क्या है, किडनी शेप्ड है। मोनोसाइट भी क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का। न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। वैसे मोनोसाइट्स भी कौन सा काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस, दैट इज द प्रोसेस इन विच द सेल एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। बट यू नो मोनोसाइट जो है वो ब्लड में रहता है, ब्लड में, ठीक है। टिश्यू में भी होते हैं फैगोसाइट, हमारे टिश्यूज में भी प्रेजेंट है फैगोसाइट जिसका नाम है मैक्रोफेजेस। टिश्यू के फैगोसाइट को क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट जो है वो किसको प्रोड्यूस करेंगे, मैक्रोफेजेस, जब जरूरत है तो। मोनोसाइट जो है वो एक्टिवली मोटाइल है, बहुत ज्यादा मोटाइल है, एंड इट विल गिव राइज टू व्हाट, मैक्रोफेजेस। टिश्यू के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल है उसका नाम है मैक्रोफेजेस। ब्लड में जो फैगोसाइटोसिस दिखाता है, जो अग्रैन्युलोसाइट है, उसका नाम क्या है, मोनोसाइट। 6 बजे के बाद आओ ना। Shall I change the slide? Ma'am. Now comes the thrombocyte or the platelets. Just a minute. हाँ पूर्व पाटिल बोल, क्या बोलने का है? हाँ टाइम पास कर रहा है तू हैंड रेस करके, क्या बोलने का है, हैंड रेस क्यों किया? ओके, द थ्रोम्बोसाइट्स और द प्लेटलेट्स,
ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट जो है बच्चे लोग, इन लोग सेल्यूलर फ्रैगमेंट के नाम से जानते हैं। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, सेल का टुकड़ा। कौन से सेल का टुकड़ा? बड़े सेल्स का टुकड़ा। और ये बड़े सेल्स का नाम क्या है? मेगा। मेगा स्टैंड्स फॉर बिग। कैरियोसाइट, ओके, द सेल्स which has nucleus and the cells are very big in size. अबे रोहन यादव, तेरा क्या चल रहा है? तू पहली बार बैठा है क्या लेक्चर में? हाँ, कभी तेरे को हैंड रेस करने का है, कभी तेरे को एनोटेट करने का है? पहली बार लेक्चर में बैठा ऑनलाइन क्लास में? तू क्या एक्सप्लोर कर रहा है मेरे लेक्चर में? अगर किसी को भी ऐसे लगता है कि मैम को अच्छी इंग्लिश आती है और मैम बहुत सभ्य है, तो तुम लोग बहुत गलत क्या बोलते हैं ना, फिराक में है। यू हैव अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग अबाउट मी। तुम्हारी नसीब अच्छी है, ऑनलाइन क्लास है, वरना मेरा लैंग्वेज बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। तो मेरी क्लास में हरकत करने के पहले ना 10 बार सोचो। मैंने ये सोचूंगी कि ऑनलाइन है, रिकॉर्ड हो रहा है और तुम्हारे माँ बाप सुन रहे हैं। समझ में आया? एक रोहन यादव और क्या है वो, आविष्कार और अपूर्वा पाटिल। मैडम जब तक मैडम है तब तक ही रेस्पेक्ट करेगी, और रेस्पेक्ट तब तक करूंगी जब तक तुम लोग स्टूडेंट के तरीके से मेरे क्लास के अंदर बैठे हो। दोबारा से नाटक किया ना यहाँ पे, मैं सीधा एक्सपेल कर दूंगी उठा के। बायो के लेक्चर में बैठने नहीं दूंगी मैं। फालतूगिरी करते हैं, पहले से ही घर में बैठे हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज क्लासेस जाने नहीं मिल रहा है, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करने का। अभी तक अकल नहीं आई क्या? 1.5 साल में कॉलेज और क्लासेस नहीं जाने से क्या क्या मिस हो रहा है? तो जो मिल रहा है उसके साथ तो ढंग से रहो, अंध बच्चे। Thrombocytes or platelets, these are basically the cells that are formed from megakaryocytes. Thrombocytes या platelets जो है वो किसमें से फॉर्म होता है? From megakaryocytes से, ठीक है? And where are they formed? किसमें बनता है? बोन मैरो में। ये सेल्स भी किसमें बनते हैं बच्चे लोग? बोन मैरो में बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट भी एरिथ्रोसाइट के जैसा है, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं है। थ्रोम्बोसाइट्स के पास भी क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। इसका नंबर देखो, 2.5 लाख to 4.5 lakh per cubic mm of the blood. Now name a disease which you must have heard a lot, in which the platelet count decreases. Name the disease in which the platelet count decreases. मैम डेंगू। हाँ, डेंगी है बेटा, वो डेंगू नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी है, ठीक है? तो डेंगी में हमारा प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे जाता है, जबकि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? 2.5 लाख to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड, ठीक है? मुझे कौन बताएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? पीनिया, डिक्रीज नंबर प्लेटलेट्स। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। कब होता है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स? दिस कंडीशन कैन अराइज ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग, ओके? अंदरूनी ब्लीडिंग है शरीर में, तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा, ओके? So basically thrombocytes or platelets are formed from megakaryocytes. Where are they produced? They are produced in the bone marrow, and these are the cells that lack nucleus. Okay, thrombocytes और platelets का नंबर कितना है? 2.5 लाख to 4.5 लाख per cubic mm of blood. Thrombocytopenia, decrease in the number of thrombocytes. कब होगा ये condition? When it is what having, when there is a condition like internal bleeding. We also call it as hemorrhage. बच्चे लोग, प्लेटलेट्स का फायदा क्या है? व्हाट इज देयर फंक्शन? बेसिकली दे हेल्प इन व्हाट? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स किसमें काम करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है? तुम इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। साइट का मतलब तुमको मालूम है? सेल। थ्रोम्बो का मतलब क्या है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट। थ्रोम्बस वर्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्लॉट, ठीक है? इसके लिए ये सेल का नाम क्या आया? थ्रोम्बोसाइट। The platelets basically secrete platelet factors. Factors का मतलब केमिकल्स है। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? सेक्रीट करते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग में टोटल 12 फैक्टर्स हैं, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। ब्लड क्लॉटिंग, हमारा खून जब जमता है ना, अगर तुमको कट आ गया है या किसी को कट आ गया है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? खून जम जाएगा।
खून के जमने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ओके, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन तैयार करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेक्रीट व्हाट? प्लेटलेट फैक्टर्स which are needed for blood clotting. Platelets secrete a chemical called as serotonin. प्लेटलेट जो है वो एक केमिकल सेक्रीट करता है जिसका नाम क्या है? सेरोटोनिन, विच इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। कोई मुझे बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय वैसो? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज वैसो? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैसो? वेसल, वेसल, वेसल का मतलब है ब्लड वेसल। ओके, उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्ट मतलब उसका डायमीटर छोटा कर देता है। तो प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? इट सेक्रीट्स प्लेटलेट फैक्टर्स विच आर एसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग। दे आर सेक्रीट सेरोटोनिन विच इज अ लोकल vasoconstrictor. I request you to revise from here. I will be asking question based on this from a granulocyte. हेलो मैम। हाँ बेटा तिवारी बोलो। मैम पैगोसाइटोसिस रिपीट करिए ना। सिस का मतलब है प्रोसेस, साइटो का मतलब है सेल, पैगो का मतलब है सॉलिड। So what is phagocytosis? It is a process in which cell engulfs solid particles. Engulf मतलब निगलना। Cell engulfs solid particles. ओके मैम। मैम लास्ट एक भी बताइए ना। कौन सा बेटा? मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल। बेटा मोनोसाइट्स जो है ना उन लोग ब्लड में रहते हैं। उन लोग देखो ब्लड में दो टाइप के पैगोसाइटिक सेल है। सबसे मेन आता है न्यूट्रोफिल जो कि ग्रैन्युलोसाइट है। अग्रैन्युलोसाइट में कौन दिखाता है पैगोसाइटोसिस? मोनोसाइट। और मोनोसाइट काफी एक्टिव है, एक्टिवली मोटाइल है। उसी तरह से हमारे टिश्यू में भी है पैगोसाइटिक सेल जिसका नाम है मैक्रोफेजेस। जब हमारे बॉडी को ज्यादा पैगोसाइटोसिस की जरूरत है तो मोनोसाइट क्या करेगा? ब्लड में से टिश्यू में जाएगा, तो उसको तब क्या बोला जाएगा? मैक्रोफेजेस। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। गणेश नेगी, कैन यू हियर मी? यस मैम। तू ऐसा बायो का क्लास सुन रहा है गाना गाना सुन के? मैम इधर ये हो रहा है, अजान हो रहा है। ओ कितना आधा हुआ अजान या अभी चालू है? नहीं पता मैम। नहीं, तू वहीं रहता है ना? ठीक है, अजान के बाद फिर से पूछूंगी। ठीक है? ओके मैम। अपूर्व पाटिल, अपूर्व पाटिल, कैन यू हियर मी? अपूर्व पाटिल, कैन यू हियर मी? हेलो मैम। हाँ मैम इट्स डन आई गेस। अपूर्व पाटिल, गणेश नेगी हियर मैम। ओके। गणेश नेगी, व्हाट डू यू मीन बाय पैगोसाइटोसिस बेटा? Ma'am, it is the process in which cell engulfs solid particles. Very good. Mute yourself. Bhagyashree, can you hear me? Bhakti, can you hear me? Girija, can you hear me? Harsh Srivastav? Jay Pawar? Yes, ma'am. Jay Pawar, tell me which is the smallest leukocyte? Which is the smallest Lymphocyte. which is the smallest leukocyte? Lymphocyte. Okay, can you name the two types of lymphocytes? B lymphocyte and T lymphocyte. बेटा इसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं?
because B lymphocyte is produced in bone marrow and it lives with bone marrow. T lymphocyte goes in thymus. बेटा ऐसे नहीं है वो. B lymphocyte is produced in bone marrow and it matures in the bone marrow itself. ठीक है? Yes, ma'am. T lymphocyte is produced in the bone marrow but it gets matured in the thymus gland. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Mute yourself, child. Thank you. Kunal Shinde, can you hear me? Yes, ma'am. The immunity provided by B lymphocyte is known as dash. Cell-mediated immunity, ma'am. Sorry? Cell-mediated immunity. Nice. Anyone would like to correct him? The immunity. Humoral immunity. Humoral immunity, beta. Okay? Okay, ma'am. Okay, the ma'am. immunity provided by B lymphocyte is known as humoral immunity. Whereas the immunity provided by T lymphocyte is known as what? Cell-mediated immunity. Thank you, Chet. Pragati Mane, can you hear me? Rachel, can you hear me? Rachel, can you hear me? Rosie, can you hear me? Yes, ma'am. Rosie? Yes, ma'am, I can hear you. Platelets are formed from dash cells. Platelets are formed from dash. Platelets are formed from dash. Rowan? Yes, ma'am. Platelets are formed from dash. Mega Very good. karyocyte. Very nice. Megakaryocyte. Okay, can you tell me the site for the production of platelets? कहाँ बनता है ये platelets? Where are they produced? Bone marrow. Bone marrow. Mute yourself, child. Rupinder? Yes, ma'am. Rupinder, state the functions of platelet. Function. Function. This condition causes internal bleeding. हाँ, प्लेटलेट से इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो हम सारे मर जाएं. हाँ, प्लेटलेट से फंक्शन क्या है? रोहन बेटा खुद को तुम म्यूट करो. शुभम जादव. Ma'am, it secretes platelet factors which are essential in blood clotting. Okay, so one is that it secretes platelet factor which is essential for blood clotting. Which is the second one? They seal ruptured blood vessels by formation of platelet thrombus. हाँ, वो नहीं, मैंने सेकंड फंक्शन पूछा. ये पहला है, तुमने पीपीटी रीड किया. सिल्वेस्टर, यश पवार. Okay, anyone? The second function of platelets? They secrete serotonin, a vascular vasoconstrictor. What do you mean by vaso, beta? What do you mean by vaso? Blood vessel, ma'am. Blood vessel. Vessels होता है basically. तो यहाँ पे अपने बॉडी में एक ही वेसल है, that is the blood vessel. Thank you, child. Next comes the blood clotting. क्या है बच्चे लोग blood clotting? कभी तो किसी को क्या बोलते हैं, चोट आई रहेगी, छोटी मोटी चोट आई रहेगी. जब चोट आती है तो क्या निकलता है बाहर? चोट आने से क्या निकलता है बाहर? Blood. ब्लड. दिन भर बहते रहेगा, जिंदगी भर बहते रहेगा. No, ma'am. बंद हो जाता है थोड़े टाइम के बाद. ब्लड को क्या हो जाता है थोड़ी देर बाद? लिक्विड है ना. ब्लड कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में. जब बाहर आ रहा है थोड़ी देर बाद क्या होता है? सूख जाता है मैम और फिर वो बंद हो जाता है.
हाँ, सूख जाता है Coagulate तो होता है। कौन से स्टेट में होता है बेटा? वो सूखने पे को कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड ब्लड जो है उसको किस में कन्वर्ट किया गया है? सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में। ब्लड क्लॉटिंग कितने मिनट में होता है? नॉर्मली 2 to 8 मिनट। ओके। और ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्टेप वाइज प्रोसेस है। ऐसा नहीं तुमको जितने आसानी से दिख रहा है उतने आसानी से हो रहा है। बॉडी को मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है। इसमें फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? केमिकल्स। दे आर बेसिकली केमिकल्स। सर्टेन फैक्टर्स आर इंट्रिंसिक एंड सम आर व्हाट? एक्सट्रिंसिक। कुछ फैक्टर्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक। ओके। इंट्रिंसिक का मतलब है द प्रोसेस may be initiated by contact of blood with any foreign surface. Intrinsic factor means ऐसा प्रोसेस जिसको शुरू करने के लिए ब्लड का कांटेक्ट किसी फॉरेन सरफेस के साथ होना चाहिए। चाकू लग गया या तो फिर गिर गए तो जमीन लग गई, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है डैमेज्ड टिश्यू। ब्लड का जो कांटेक्ट है वो किससे हो रहा है? डैमेज्ड टिश्यू से हो रहा है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोला जाएगा। ये दोनों फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेसेस टुगेदर इज नोन एज व्हाट? क्लॉटिंग फैक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेसेस दोनों फैक्टर इट इन्वॉल्व इंटरैक्शन। इट इन्वॉल्व व्हाट? इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस and it is called as what? Clotting factor। इसको हम क्या बोलते हैं? Clotting factor। टोटल कितना क्लॉटिंग फैक्टर है? 12। There are total how many clotting factors? 12 and they work in a stepwise manner। stepwise manner के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैस्केड। कैस्केड। ठीक है। अब ये जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर है उसको हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं और याद रखो 1 से लेके 12 तक है, लेकिन फैक्टर 6 नाम का फैक्टर ही नहीं है। देयर इज नो फैक्टर कॉल्ड एज फैक्टर 6। इतना समझा? इतना समझा सबको मैंने क्या बोला है? ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म। Okay, the normal time period for a blood clotting is about 2 to 8 minutes. Intrinsic process and extrinsic process involve interaction of various substances. Intrinsic process and extrinsic process involves interaction of various substances, which is known as what? Clotting factors. And in clotting factors, how many clotting factors are there? 12, which work in a stepwise manner. We call it as cascade. Usually, we write the clotting factor in the form of Roman numerals. But remember, there is no factor 6. Is it clear to hear? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. ये जो फैक्टर्स है वो सबसे पहले एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है थ्रोम्बिन। ओके। इंटरैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स in a cascade manner, that is the stepwise manner, leads to the formation of an enzyme called as what? Thrombin। Okay। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन नाम नोट करना। ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं स्टेपवाइज मैनर में, और वो क्या बनाता है? एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बिन। ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन करके एक केमिकल है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है केमिकल है which helps in the formation of an enzyme called as prothrombinase। ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम है, ओके, इट इनएक्टिवेट्स हेपारिन। वो हेपारिन को बंद करवा देगा। क्यों? हेपारिन ऐसा क्या करेगा? ये क्यों हेपारिन को रोक रहा है? इनएक्टिवेट मतलब वो हेपारिन को काम करने नहीं दे रहा है। क्यों? हेपारिन के काम करने से क्या होएगा?
डू यू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ हेपेरिन? किसी को पता है हेपेरिन क्या है नेचर में? इट्स अ एंटी कोएगुलेंट, वो खून को गाढ़ा होने से रोकता है। हेपेरिन जो है इट्स अ केमिकल विच इज एंटी कोएगुलेंट, इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट। ओके, तो एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज सबसे पहले क्या करेगा? इट इनएक्टिवेट्स हेपेरिन, और वो साथ में क्या कर रहा है देखो, इट विल कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज का काम क्या है? टू कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। ठीक है, अभी थ्रोम्बिन का काम क्या है? इट कन्वर्ट सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन, सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन इनटू सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन जो कि क्या है? फिब्रिनोजेन, इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन। थ्रोम्बिन के बनने से उसने क्या किया? उसने फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? फिब्रिन में, और फिब्रिन क्या है? इनसोल्यूबल है। अब ये फिब्रिन, फिब्रिन से तुमको फाइबर वर्ड याद आएगा, धागा। फॉर्म्स अ मेश, मेश जाल बुनता है, फॉर्म्स अ मेश इन विच द प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेल्स फॉर्म अ क्लॉट। So this is how the blood clotting works. Okay, blood clotting क्या है बच्चे लोग? It is a process in which the liquid blood is converted into solid or semi-solid form. Normal clotting period is 2 to 8 minutes. Intrinsic process and extrinsic process, okay, interact with various substances and is called as clotting factor. कितना क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं? 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स। हम नॉर्मली क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। We write basically the clotting factor in Roman numerals, except factor 6. There is no factor called as factor 6. It is not used much. Okay, all these factors are working to form what? Thrombin. ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं और मिलके काम करके क्या बनाना है उनको? थ्रोम्बिन। सबसे पहला शुरू हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन से। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। अच्छे से ध्यान दो, थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके, जो डैमेज टिश्यू होता है, कट गया है जहाँ पे डैमेज टिश्यू हो गया, ठीक है, वहां पे क्या होगा? ये टिश्यू क्या बनाएगा? एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। अभी ये प्रोथ्रोम्बिनेज सबसे पहला क्या करेगा? इट इनएक्टिवेट हेपेरिन। किसको इनएक्टिवेट करेगा? हेपेरिन को। Okay, then it will convert inactive prothrombin into an active thrombin. अभी ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन फिब्रिनोजेन इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन। फिब्रिन क्या फॉर्म करेगा? मेश, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन विच द प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेल्स फॉर्म द क्लॉट। ओके, जय पवार, अनम्यूट योरसेल्फ। जय पवार। Yes, ma'am. हाँ बेटा, डैमेज टिश्यू क्या बनाएगा? व्हाट डज द डैमेज टिश्यू प्रोड्यूस? Thromboplastin. वेरी गुड। एंड नाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ Prothrombinase. वेरी नाइस। यश पवार, अनम्यूट योरसेल्फ। यश पवार। हाँ यश पवार, मुझे ये बोलो, एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज क्या काम करेगा? It will heparin and prothrombin. It will active thrombin. वेट, यश पवार पहला काम क्या करेगा? वो इनएक्टिवेट हेपेरिन, हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। Yes. दूसरा क्या कर रहा है? कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। ठीक है, हाँ जैक अनम्यूट करो खुद को। यस मैम। बेटा थ्रोम्बिन क्या करेगा? अभी थ्रोम्बिन क्या करेगा?
मैम वो सॉल्युबल ब्लड को कन्वर्ट करता है। सोल्यूबल ब्लड को कि ब्लड प्रोटीन को? हाँ मैम, ब्लड प्रोटीन को फिब्रिन में। हाँ, सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन का नाम क्या है? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन। तो जैस क्या बोलना है कि ये थ्रोम्बिन का काम क्या है? इट कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, ठीक है। और फिब्रिनोजेन कैसा है? सोल्यूबल है, जबकि फिब्रिन कैसा है? इनसोल्यूबल। अब ये फिब्रिन क्या कर रहा है? इट फॉर्म्स अ मेश। फिब्रिन क्या करता है? मेश बना रहा है। मेश का मतलब क्या होता है? धागा। इट फॉर्म्स अ मेश इन विच द प्लेटलेट एंड अदर ब्लड सेल्स फॉर्म द क्लॉट। आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू रिवाइज दिस। अभी मैं ऐसे टुकड़ों में नहीं पूछूंगी, मैं तुमको खुद को बोलूंगी कि पूरा का पूरा आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। आई एम प्लेइंग द स्लाइड, रिवाइज इट केयरफुली। यस जैस, व्हाट हैपेंड? मैम 2 to 8 minutes वाली जो लाइन है उसको मतलब कैसे बोलेंगे? The normal The blood maximum clotting, time. the normal blood clotting period is 2 to 8 minutes. ओके मैम। Anyone ready to give the complete answer for blood clotting? Yes ma'am. Okay. Yes, sir. Clotting or coagulation is the process of converting the liquid blood into solid form. The normal blood clotting period is 2 to 8 minutes. There are two processes, intrinsic and extrinsic processes, which involve interaction of various substances in a stepwise manner, that is called as cascade. There are total 12 clotting factors, in which fourth factor is not included. Sixth factor is not included or active. Interaction of these factors in a stepwise manner leads to the formation of enzyme thrombin. It's not an enzyme, beta. Thrombin enzyme नहीं है. Leads to the formation of thrombin. Again. Thrombin. Okay, ma'am. Thromboplastin helps in the formation of enzyme prothrombinase. Yes. Then it inactivates heparin and it converts inactive prothrombin into active thrombin. Then the thrombin converts fibrinogen into fibrin. Fibrin forms a mesh in which platelets and other blood cells form the clot. Very good. Anyone from the boys would like to give the answer? Anyone from the boys? Anyone from the boys would like to answer the same? Okay. Anyone? Any other girl would like to answer? Yes, Sakshi Rathod. Just give me a minute. Yes, Sakshi. Tell. Hello, ma'am. I can hear you. Yes, ma'am. Coagulation of blood. This is the process in which the conversion of liquid blood into solid form. This is the process in which the normal blood coating period is 2 to 8 minutes. There are two processes, which is intrinsic and extrinsic process. Involve interaction of various substances called factors. There are in all 12 clotting factors numbered as 1 to 12 factors by a stepwise or cascade mechanism. The interaction of these all factors leads to formation of thrombin. This thromboplastin helps in formation of enzyme prothrombinase. This inactivates the heparin and also converts inactive prothrombin into active thrombin. This thrombin converts soluble blood protein fibrinogen into soluble fibrin, and this fibrin forms a mesh in which platelets and other blood cells are trapped to form the clot. Very good, child. Very nicely said. Okay. Now the next.
topic that we are going to deal with is human heart. Okay, important है. Human heart जो है इट बेसिकली अ पंपिंग ऑर्गन. ये पंप करता है अपने ब्लड को, इसके लिए हम इसको पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं. हमारे हार्ट को हम देखेंगे ना, अंदर से जगह है, उसके अंदर जगह है, इसके लिए हॉलो वर्ड है. ठीक है, हार्ट अंदर उसके जगह है, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं हॉलो. इट्स अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर. ये कॉनिकल शेप में है, कॉनिकल शेप में है, और ये लंग्स के, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है. ये दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, और वो दो लंग्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टीनम. द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स इज नोन एज व्हाट? मीडियास्टीनम. So basically this particular heart lies inside the thoracic cavity between the two lungs. Okay, lies inside the thoracic cavity between the two lungs in a space called mediastinum. इसका apex देखो, narrow है, जबकि इसका base काफी broad है. Look at the cursor. The apex is narrow and the base is what? Broad. ओके, एंड बहुत जन बोलते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. नो, इट इज मिड वेंट्रल इन पोजीशन. मिड मतलब बीच में है, हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड में. इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? मिड वेंट्रल. स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. अगर तुम अपनी मुट्ठी बंद करोगे, राइट वाली मुट्ठी बंद करो और अपने चेस्ट के बीचों बीच रखो, तो तुम देखोगे कि जो एक हिस्सा है तुम्हारे फिस्ट का, मुट्ठी का, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाता है. इसके लिए लोगों को लगता था कि हार्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ में. ऐसा नहीं है, इट इज मिड वेंट्रल इन पोजीशन. ओके, एंड द एपेक्स इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. हमारा हार्ट बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. हमारे बॉडी का हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग. किसी को भी थोड़ा डैमेज हुआ तो बॉडी को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ठीक है, इसके लिए नेचर ने इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा है. थोरैसिक केज के अंदर, रिब केज के अंदर. उसके बाद इसको एक कवरिंग जैसा बोल सकते हैं, इसको एक कवर के अंदर बिठाया है. इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. पेरी का मतलब होता है ऑन, कार्डियम वर्ड इसके लिए आया है हार्ट. द मेम्ब्रेनस सैक which covers the heart or which lies on the heart is known as what? Pericardium. The protective membrane inside which the heart is enclosed is known as what? Pericardium. Pericardium का दो लेयर्स हैं, आउटर फाइब्रस, इनर सेरस. आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन और इनर क्या है? सेरस मेम्ब्रेन. Pericardium has two layers, outer fibrous membrane and inner serous membrane. ठीक है, अब ये serous membrane जो है ये सॉफ्ट है, इलास्टिक और मॉइस्ट है. और ये किसका बना हुआ है बच्चे लोग? हमारा serous membrane किसका बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम का. serous membrane किसका बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम का. और ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू लेयर्स. पराइटल, बायो में जब भी वर्ड आएगा ना पराइटल समझ जाना, आउटर. विसरल, विसरल का मतलब होता है इनर. बेसिकली सेरस मेम्ब्रेन दो लेयर्स है, दो मेम्ब्रेन का बना है. सेरस मेम्ब्रेन और दो लेयर का बना है. बाहर वाले लेयर को बोला जाएगा पराइटल लेयर और अंदर वाले लेयर को बोला जाएगा विसरल लेयर. इतना ठीक है? इतना समझा? सुन भी रहे हो? Can anyone give me the location of the heart? Location of the heart. Where is heart located in the body? Mid ventral. Mid ventral. और कुछ ऐड करना है? Mid ventral. Inside the thoracic cavity. Between two lungs. In a space called mediastinum. ओके, जब भी लोकेशन पूछा जाएगा हार्ट का तो बोलना मिड वेंट्रल इन पोजीशन, वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द थोरैसिक कैविटी,
between two lumps in a space called mediastinum. Okay? Name the protective membrane of heart. Name the protective membrane of Pericardium. ठीक है? The pericardium has two layers. The outer layer is known as fibrous membrane, whereas the inner membrane is known as serous membrane. What is the serous membrane made up of? What is the serous membrane made up of? Squamous epithelium. Squamous epithelium. Okay, squamous epithelium. And the serous membrane can be differentiated into two layers. Outer layer कौन सा है? बाहर वाला layer. Parietal layer. क्या है? Parietal layer. अंदर वाला layer कौन सा है? ठीक है. अब दोनों लेयर के बीच में ना बच्चे लोग जगह आता है. Between the two layers there is a space called as what? Pericardial space. Between the two layers, what is there? There is a space, and we call it as what? Pericardial space. Inside which what is present? Pericardial fluid is present. Okay? Inside which what is present? Pericardial fluid is present. एक बार ये slide ध्यान से पढ़ लो. Now, what is the function of this pericardial fluid? Pericardial fluid का काम क्या है? It acts as a shock absorber. काम क्या है? Shock absorber. Protects the heart from mechanical injury. Protect करता है heart को किससे? Mechanical injury से. Keeps the heart moist and acts as a lubricant. ये function है किसका? Pericardial fluid का. It acts as a shock absorber. Protects heart from mechanical injury. Keeps the heart moist and acts as a lubricant. वो लोग पूछते हैं what is the function of pericardial fluid? Shock absorber, protects heart from mechanical injury, keeps heart moist and acts as a lubricant. Heart wall, heart के walls है बच्चे लोग. बाहर वाला wall जो है बाहर, इसके लिए word आया है epi. बाहर है इसके लिए word क्या आता है? epi. ओके, बाहर है इसके लिए word आया है epi. मसल है बीच वाला वॉल जो है मसल का बना है, इसके लिए मायो. और अंदर जो है उसके लिए एंडो. ठीक है, तो हार्ट के 3 वॉल्स है. बाहर वाला एपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम क्योंकि वो मसल्स का बना है, और सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम. बच्चे लोग ये एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम दोनों किसका बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम का. लेकिन मायोकार्डियम जो है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल दैट इज कार्डियाक मसल. मायोकार्डियम जो है वो एक स्पेशल मसल का बना है जिसका नाम है कार्डियाक मसल. और ये कार्डियाक मसल के वजह से ही हमारा हार्ट क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कार्डियाक मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज होता है सिस्टोल, रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है डायास्टोल. कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड है सिस्टोल, रिलैक्सेशन के लिए वर्ड क्या है? डायास्टोल. रीड दिस स्लाइड केयरफुली. Shall I change the slide? Shall I change the slide? Yes, ma'am. Shirley D'Souza, can you hear me? Shirley, can you hear me? Shirley? Surbhi, can you hear me? Surbhi? Yes, ma'am. Name the protective membrane of heart. Name the protective membrane of heart. What happened? Inner. Vaibhavi Sawant, Vaibhav Mishra, Yash Pawar,
Yes, ma'am. Protective membrane of heart. Pericardium. Very good. Sumit Pal, Sujit Sawant, Soham Rane. Yes, ma'am. Beta, name the fluid that is present between that is present in the pericardial space. Name the fluid present in the pericardial space. Pericardial fluid. उधर पे कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? तो हम पेरिकार्डियल स्पेस में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है रे? एनीवन? Pericardial fluid. पेरिकार्डियल फ्लूइड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड? क्या फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? Shock absorb. Shock Protect absorber. from mechanical injury. Protect the heart from mechanical injury. Then next, Keep the heart moist. Keep heart moist and acts as lubricant. okay, keep the heart moist and acts as lubricant. Name the walls of heart. Shweta Jadhav. Walls of heart. Shubham Jadhav. अरे तुमको पढ़ना नहीं है तो ज्वाइन क्यों किया है क्लास? श्रेयस श्रावणी, सरबा खान, सानिका खैर, सना मंसूरी. Yes, ma'am. Name the walls of heart. Pericardium and myocardium. Be louder, child. I am not able to hear you. सना, मुझे तुम्हारे जोर से बोलो बेटा. Hello, ma'am. Outer epicardium and middle myocardium. और दो ही लेयर है हार्ट को, आउटर एपिकार्डियम और मिडल मायोकार्डियम. सना, और एक है ना बेटा? Inner endocardium. इनर एंडोकार्डियम. ओके. साक्षी राठौड़. Yes, ma'am. बेटा, the epicardium and the endocardium is made up of dash. Epicardium and endocardium is made up of dash. अरे भगवान, तुम लोग से तो मैं रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन पूछ रही हूँ, है ना? रुपिंदर. Yes, ma'am. बेटा, epicardium and endocardium is made up of dash. Ma'am, flat squamous epithelium. Very good. Rohan. Ma'am. बेटा, the myocardium is made up of dash. Myocardium is made up of dash. He was having his dinner, so he could not answer. Rosie, Yes, ma'am. do you know myocardium is made up of dash? Cardiac muscle. Very good. Cardiac muscle. And can you tell me what is the responsibility of the cardiac muscle? Responsible for contractions, systole and relaxation, diastole. 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 Okay? Contraction, systole and relaxation, diastole. Diastole. Children, in the next class, I will be taking the external and the internal structure of heart. So till then, you can revise whatever is taught till today. Then in the next class, I will proceed with the chapter. Have a good night.